Ma'am, we are live. Okay. Shall we start? Akshay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are live. Yes. A very warm good afternoon to one and all. I welcome you all for the seventh day of the national webinar, Navadasha Samvada. Today we have a guest speaker along with us, Dr. Leeladhar Sahu uh, from Raipur. Sir is going to talk on general introduction and principles of management of the diseases caused by pancreas gland as an endocrine. Okay. Uh, Now I call upon Miss Kriti, final year BMS student, Ayurveda Mahavidyalaya Hubli, to introduce and welcome our today's guest lecturer, Dr. Leeladhar Sahu. Kriti, Yes, ma'am. yes, you can keep your both video and audio on and start. Thank you. Good afternoon, one and all. It's my pleasure to introduce today's guest speaker, Dr. Leeladhar Sahu, who is presently working as Assistant Professor in the Department of Kaya Chikitsa at Rajiv Lochan Ayurveda Medical College, Chandkuridur, Chhattisgarh. Sir completed his UG from Sri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh in 2009. Sir completed his PG from the same institute during the year 2014. Sir has published many research papers in national and international journals. Sir has participated in many national and international level seminars. We are lucky to have such a vast experienced resource person with us today. My wholehearted welcome to you, sir. Thank you. Thank you. Sir, I'll present your slides. Yes. Okay, sir. Sir, you can start the session. Your slides are on. Hello. Hello? Hello. Hello? Lights are not showing, ma'am. Sir, now, Akshay, please pin. Hello. Akshay, Light visible नहीं हो रहा. जी sir, एक बार. Akshay, can you pin the slides? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. So that they'll be visible to sir. हाँ. सर अभी आ रहा है सर. हेलो. Hello. सर Sir, अभी आ रहा slides. है. आ रहा है. Light नहीं है. Sir, दिख रहा है sir? Slides. No, Sir, आ नहीं रहा slide. सर वहाँ पे पीपल्स है ना सर 46 पीपल्स तो फर्स्ट में मंजुला करलवाड़ इज प्रेजेंटिंग बोल के एक आता है सर वहाँ पे आप यूज द पिन तो आपको वो दिखाई देंगे यू कैन सेलेक्ट दैट प्रेजेंटेशन Okay. डॉक्टर मंजुला करलवाड़ प्रेजेंटेशन वो सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा Okay. ठीक है सर One, two. Hello. जी सर Hello. हेलो हेलो Good afternoon, everyone. यू कैन स्टार्ट सर Everyone. Thank for such webinar. The topic just and principle of data caused by
करिए। हेलो। हाँ सर। हेलो। हेलो। सर आपका ऑडियो म्यूट है सर। हाँ ओके ओके। ओके सर, अभी स्लाइड सुना। मूव नहीं हो रहा था उसमें। ओके ओके। Very good afternoon to all organizing committee of this webinar, and thanks to all principals and faculty of Department of Kaya Chikitsa for inviting me to present this topic on general introduction and principles of management of disorder caused by pancreas. Next slide move करें sir. Hello. Everyone knows about the pancreas. So first off, that what is pancreas? Pancreas is a soft lobulated organ that stretches obliquely across the posterior abdominal wall in the epigastric region, situated behind stomach and extends from duodenum to the spleen. It has basically two components. That is, first is the exocrine and second is the endocrine. First, endocrine pancreas is composed of islands of Langerhans, which controls the insulin secretion and by this controls the metabolism of glucose. Endocrine pancreas contains different types of cells which produce hormones that regulate carbohydrate metabolism. And when the dysfunction endocrine pancreas, then it produces disease like diabetes mellitus. Another part is that is the exocrine pancreas, which contains enzyme that secretes pancreatic juice, which carry to duodenum by pancreatic ducts. And when exocrine gland is not working properly, then there is a disorder or disease occurs like mild digestion, fatty steatoria. तो बेसिकली दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज एक्सोक्राइन एंड सेकंड इज एंडोक्राइन कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियास. Sometimes both exocrine and pancreatic dysfunction occurs in same patient. Next please. Hello. This is the structure of pancreas. Everyone knows about this. Basically three parts, that is the head, body and tail. Head is connected to duodenum and tail is connected to the spleen. This is the duct. Here we see the duct and his parts like body, head, body and tail. Next please. Next. So previously discussed that exocrine gland. So such a way this secretes pancreatic juice into the duodenum through the pancreatic duct. This juice contains
bicarbonates, which neutralizes the acid entering the duodenum from the stomach, and digestive enzymes, which break down carbohydrates, proteins, and fat in food entering the duodenum from the stomach. Next, please. First, we consider about discuss here the exocrine gland. That is the everyone knows that pancreatic juice. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अग्नि अग्नि का स्थान हम लोगों ने पढ़ रखा है। अग्नि का स्थान कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो मिडल ऑफ अम्बलाइकस के अराउंड में अग्नि का स्थान बताया गया है। तो पेनक्रियाज ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर सभी काम, इसके अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो बेसिकली डाइजेशन, फूड के डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इस तरीके से वो हमारे फूड का प्रॉपर डाइजेशन करता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस, इट कंटेन्स 1.5 liter pancreatic juice is secreted each day. Pancreatic juice contains water, ions, and a variety of proteins. The principal ions, that is the bicarbonate, chlorine, sodium, potassium, etc., and alkaline nature. This is the important, that is, it's a alkaline nature, which is plays a major role in neutralizing the gastric acid entering the duodenum. गैस्ट्रिक एसिड जब ऊपर से अमाशय से नीचे की ओर जब आता है स्टमक से duodenum में, तो उसका जो न्यूट्रलाइजेशन का काम पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू होता है। Pancreatic enzymes aid in the interluminal phase of digestion and absorption of fat, carbohydrate, and proteins. The rest are plasma proteins, mucoproteins, and trypsin inhibitors. और मुख्य होता है नेक्स्ट फॉर्म में कार्बोक्सिलेज कंट्रोल होता है इसके द्वारा में इसका
fat has Leeladhar sir, hello. Hello. Sorry to interrupt sir, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही. You are not able to hear our voice. I think there is some net issue. Hello. हेलो. अब आ रही है मैडम? हेलो हेलो. हाँ सर, अब अब तक आवाज तो आ कुछ रही है? सुना, अब तक हेलो तो कुछ सुन. हेलो हेलो. जी सर. हेलो. हाँ, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ मैडम. अपना जो जी वीडियो है सर. मैं ऑफ रखता हूँ, तो हो सकता है ऑडियो जी ठीक सर, आएगा. अभी सुनाई दे रहा है सर सही. ओके ओके. अब आ रही है मैडम क्लियर जी आवाज? सर. जी सर. जी सर. अभी ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है सर. ओके. तो जैसे कि अभी ओके ओके, अभी तक हमने डिस्कस किया है जैसे बेसिकली पेनक्रियाज ग्लैंड है जो दो तरीके से फंक्शन करता है. फर्स्ट इज द एक्सोक्राइन फंक्शन है और सेकंड उसका एंडोक्राइनल फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन के थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर जो हम आहार लेते हैं उसके पाचन का काम करता है. सेकंड जो एंडोक्राइनल फंक्शंस होते हैं उसके थ्रू वो हार्मोनल एक्टिविटी शो करता है. तो यहाँ पर जो हार्मोन्स रहते हैं जिसमें अमाइलेज है, लाइपेज है, इस तरीके के जो हार्मोन्स हैं ये पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू सिक्रीट होते हैं. ये पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन में हाँ ये है, दैट इज द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. तो टू फॉर्म्स में रहते हैं प्रेजेंट. फर्स्ट है एक्टिव फॉर्म एंड अनदर एंजाइम इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म. तो एक्टिव फॉर्म में कौन कौन से रहते हैं? तो दैट इज लाइपेज, एमाइलेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंड राइबोन्यूक्लियस. एंड इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोलेस्टेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, फॉस्फोलाइपेज A2. तो ये जो एक्टिव फॉर्म्स एंड इनएक्टिव फॉर्म ये इसलिए बताए गए हैं क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म्स जो है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है डिओडिनम में जब ये जाते हैं तो इसके लिए ट्रिगर होता है. उस ट्रिगर के थ्रू ये फिर एक्टिवेट होते हैं. इसके लिए ट्रिगर बताया गया सिक्रीटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन. नेक्स्ट प्लीज. हेलो, नेक्स्ट करिए. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पेनक्रियास के बारे में. नेक्स्ट So endocrine pancreas is basically composed of nest of cells called island of Langerhans. The endocrine pancreas is a function of occurs. Means that are much more vascularized than the exocrine pancreas.
pancreatic periphery, thereby allowing insulin produced by. हेलो Next, हेलो please. सर वो वॉइस तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा सर, बहुत ये हो रहा है सर। सर हेलो Hello. Next. Hello. 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 जी सर, वॉइस वॉइस सुनाई ठीक नहीं से दे नहीं रहा आ था रही है सर। क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, क्या? जी सर। अब आ रही है मैडम ठीक से आवाज? हाँ सर, आप भी वॉइस आ अभी रही आ है? रही है सर, लेकिन आप बात करते करते नेटवर्क का हाँ थोड़ा सर, इश्यू लग रहा है थोड़ा आज। चेक करेंगे क्या इंटरनेट कहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब तक तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ठीक तरह से। ओके ओके, मैं चेक करता हूँ। हाँ, अभी ठीक हाँ से ना अभी मैडम, तो अभी आ रही है आवाज आ सर। रही है प्रॉपर? जी जी सर, जी सर, जी सर। अभी आ रही है ना आवाज? ओके ओके, अभी ठीक है मैम? आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर, अभी क्लियर है क्लियर अभी है सर, वॉइस? अभी क्लियर। जी सर, जी सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है जी मैडम? सर, आवाज आ रही है सर, ओके, आ रही है सर। नेक्स्ट करिए। ओके, नेक्स्ट प्लीज। So basically okay, let's start the disorder of pancreas. So here our topic is the management and the general discussion about the diseases. तो टू कंपोनेंट, जैसे कि हमने अभी बताया कि दो कंपोनेंट होते हैं पेनक्रियास के। फर्स्ट होता है एक्सोक्राइन एंड सेकंड अनदर इज होता है एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में बेसिकली मेन जो डिसऑर्डर होता है, जो क्लिनिकली हम लोग को मिलता है, clinically presented, that is the pancreatitis। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में जो मेन डिसीज होता है वह डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, पैनक्रेटाइटिस है, डायबिटीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस and congenital malformations. Sometimes pancreatic tumor that is found. So first we discuss here the congenital malformations. So next please. तो congenital anomalies, जैसे कि agenesis, first is the agenesis, which occurs due to the mutation in chromosome 13। agenesis means पेनक्रियास का यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एंड पेनक्रियास डायबिसम, ये मोस्ट कॉमन होता है। ये कंजेनाइटल एनोमलीज 3 to 10% ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस जो केस होते हैं उसका काज होता है ये पेनक्रियास डायबिसम। एंड एनुलर पेनक्रियास, एनुलर पेनक्रियास, इसमें क्या होता है, ये एंसर्कल जो डिओडिनम के पार्ट में इसका हेड कनेक्ट होता है, तो वहां पर वो डिओडिनम को के चारों तरफ अराउंड एक सर्कल फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण डिओडिनम में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है, एनुलर पेनक्रियास। एंड अनदर इज ectopic pancreas. So these are the congenital anomalies of pancreas. Next please. So first we discuss here most common disease. Nowadays this is most common due to mithya ahar vihar. So that is pancreatitis. So pancreatitis is basically inflammation of pancreas.
it affects the exocrine portion of pancreas. It occurs due to the injury of the exocrine portion of pancreas. Its severity is ranges from mild to severe form, and even life-threatening condition it develops. It is basically an inflammatory process. Next, please. Next. First, there are two types of pancreatitis. First is acute pancreatitis, and another is a second chronic pancreatitis. First, acute pancreatitis. That is the reversible. Acute pancreatitis is a reversible pancreatitis parenchymal injury associated with inflammation. मेल फीमेल रेशियो में सबसे ज़्यादा मोस्ट चांसेस कॉमन होता है ये फीमेल्स में. It accounts the biliary tract disease and gallstone account for 80% of cases. ये acute pancreatitis biliary ऐसे पेशेंट जिन डिसीज साथ ही साथ हो, तो ऐसे पेशेंट्स में acute pancreatitis होने के चांसेस 80% होते हैं. And alcohol is a precipitant factor. About 60% of cases. Various etiological factors are described like metabolic, like alcoholism, hyperlipoproteinemia, hypercalcemia, stress, and genetic factors like mutations in ketogenic, and mechanical factors like gallstone, trauma, operative procedure, vascular shock, thromboembolism, vasculitis, and infections like mumps. Next, please. Less common causes are pancreatitis, which is ampullary carcinomas, Ascaris lumbricoides, and hereditary pancreatitis. Next. एक होता है फॉर्म यहाँ पर hereditary pancreatitis. That is the recurrent attack of severe pancreatitis. Begins in childhood, and most of them are due to genetic mutations. This occurs due to the genetic mutation, so it is called the hereditary pancreatitis. Next. Let's see the pathogenesis. यहाँ पर मेन पैथोजेनेसिस ये होता है कि ऑटो डाइजेशन, जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं जो एक्सोक्राइन पोर्शंस के, उसका ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. तो ये ड्यू टू होता है, इसका मेन कारण होता है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. तो इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट, तो जो इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन होता है उसका मेन कारण होता है यहाँ पर ट्रिप्सिन इवेंट इन एन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. ट्रिप्सिनोजेन मेन कॉज करता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. नेक्स्ट, तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट होता है यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन विच रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोएंजाइम्स, देन ये स्टार्टेड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. अब देखते हैं जो अल्कोहलिज्म है, ये मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है ट्रिगरिंग का. तो अल्कोहल कंजम्पशन से क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन रिच पैंक्रियाटिक फ्लूइड, इंक्रीज पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, एंड डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एसिनर सेल्स. अल्कोहल के द्वारा मेन इसका टॉक्सिक इफेक्ट. नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट,
क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पर होते हैं? तो सबसे फर्स्ट होता है क्लिनिकल फीचर सीवियर एब्डोमिनल पेन, मोस्ट टाइम्स एब्डोमिनल पेन, एंड कभी कभी यहाँ पर बैक पेन भी होता है, बैक की तरफ रेडिएट भी होता है, एंड constitutional symptoms like anorexia, nausea, vomiting, leukocytosis, hemolysis, disseminated intravascular coagulation, fluid sequestration, and ARDS, and diffuse fat necrosis, peripheral vascular collapse, and shock acute renal tubular necrosis. Next. इसके अलावा कुछ और साइंस मिलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हैं पेरिटोनियल irritation sign, that is due to the sign present here, abdominal tenderness, rebound tenderness and rigidity. Shifting dullness ये present होता है. Another thing is decreased bowel sound, tachycardia, and two most specific cardinal features कहा जाए तो Cullen signs and Gray Turner signs. Cullen signs is a discoloration of periumbilical area, and Gray Turner sign discoloration of flanks. पिक्चर्स में जैसा कि शो हो रहा है इस तरीके से हेमरेजिक डिस्कलरेशन यहाँ पर मिलते हैं. लैब इन्वेस्टिगेशन में नेक्स्ट लैब इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे हम तो एलिवेटेड सीरम अमाइलेज लेवल. सीरम अमाइलेज लेवल एलिवेट होता है विद इन 24 hours, and lipase level is elevated within 72 hours. Another next please. इमेजिंग फाइंडिंग्स. क्या क्या फाइंडिंग्स हमें इमेजिंग में मिल सकती है? तो फर्स्ट हम एक्सरे चेक करेंगे तो वहाँ पर हमें डायलेटेड लूप ऑफ स्मॉल बॉवेल ये मिल सकता है. रेडियो ऑपरेट डेंसिटीज ड्यू टू बिलियरी कैलकुलाई, ये कॉमन फाइंडिंग्स हैं जो मिल सकती है पेशेंट में, एसोसिएटेड हो सकता है. लेफ्ट साइड प्लूरल एफ्यूजन. इसके अलावा when USG is done, then we see the pancreatic edema. Sometimes associated ascites also present due to inflammatory changes. CT is the best to diagnose such condition, and it shows the pancreatic necrosis. Next. अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस. तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है? ये है दैट इज द recurrent bouts of inflammation leads to loss of pancreatic parenchyma and replacement by fibrosis. यहाँ पर क्या होता है? बार बार वहाँ पर जहाँ पर पेनक्रियास में इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते रहते हैं, इन्फ्लामेशन बार बार होता है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है. प्राइमरी काजेज हैं इसके एल्कोहल एब्यूज, हाइपरकैल्सीमिया, hereditary pancreatitis and pancreas division. Next. In chronic pancreatitis, there is pathology occurs, lobular appearance of pancreas, reduce in size ड्यू टू फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस के कारण यहाँ पर इसका साइज धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, इन्फ्लामेशन रहते हैं और उसके जो डक्ट हैं उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. साथ ही साथ में स्यूडोसिस्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, एक सिस्ट बन जाता है लगभग 25% ऑफ केसेस में. एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस में हमें मिलता है सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक शॉक, ऑर्गन फेलियर, DIC, पैंक्रियाटिक एब्सेस, सीडोसिस, डियोडीनल ऑब्स्ट्रक्शन. नेक्स्ट. Sequelae of chronic pancreatitis, so duct obstruction, cirrhosis, malabsorption, secondary diabetes. Next. मैनेजमेंट. अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट. तो पैनक्रियाटाइटिस का
In modern allopathic treatment, there is no permanent cure for pancreatitis. Only conservative management केयर किया जाता है. सीवियर पेन किलर्स यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं. देन फाइनल आता है सर्जरी का ऑप्शन. सर्जरी किया जाता है, इसमें होता है एक ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी. इस प्रकार से एलोपैथिक में इसका मैनेजमेंट इस तरीके से कंजर्वेटिव ओनली ट्रीटमेंट किया जाता है. बट इन आयुर्वेद मैनेजमेंट we give a good results. Like main concept is शामक एंड पित्त रेचक चिकित्सा. क्योंकि अग्नि का स्थान है तो हमें यहाँ पर पित्त को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चिकित्सा करनी चाहिए. तो इसके लिए हमें पित्त का शामक द्रव्यों का प्रयोग करना है और पित्त को जो रेचन करा है पित्त रेचक द्रव्य, जैसे कि कुटकी है, कुटकी का प्रयोग करते हैं. आरोग्यवर्धनी वटी कुटकी, कटुरोहण्यादि कषाय आता है, कुडुच्चादि कषाय पित्त शामक भी है. साथ ही साथ हमें आम पाचन की चिकित्सा करनी चाहिए और स्रोतस शोधन की. तो यहाँ पर हमें शोधन एवं शमन दो तरीके से यहाँ पर चिकित्सा करनी चाहिए. फर्स्ट और पहली चीज़ है आहार विहार. तो आहार विहार में एल्कोहल एब्यूज है पेशेंट का, ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रिक्ट करानी चाहिए. साथ ही साथ में फिर मैनेजमेंट करना चाहिए. रस औषधों में हम विभिन्न प्रकार के रस औषध हैं, जैसे कि जो पित्त शामक हो और अग्नि को भी रेगुलेट करते हैं, डाइजेशन को भी ठीक करते हैं, जैसे कि सूतशेखर रस है, ताम्र सिंदूर है, प्रवाल पंचामृत रस है और प्रवाल पिष्टी. इस तरीके के रस औषध से हम यहाँ पर पेनक्रेटाइटिस का मैनेजमेंट कर सकते हैं. बहुत से पेशेंट्स में इस तरीके से देखा गया है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं आयुर्वेद में. तो इस तरीके से हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कि डिसीज मिलता है कभी कभी सिस्ट के रूप में, पेनक्रेटाइटिस pseudocysts. This is a localized collection of pancreatic secretions. Usually all arise after a bout of acute or chronic pancreatitis. Basically acute या फिर chronic pancreatitis होने के बाद ही होता है. Different from strep pancreatitis, abscess से different होता है. Next please. Next. इस तरीके से सिस्ट का फॉर्मेशन होता है ये पेनक्रियास के अंदर. इसमें कलेक्शन होता है, पेनक्रियाटिक जूस का कलेक्शन होता है यहाँ पर. नेक्स्ट अब नेक्स्ट हाँ बस ओके. अब आते हैं हम लोग इसके जो मोस्ट कॉमन डिसीज है जो एंडोक्राइन पोर्शन का होता है. अभी हमने देखा एक्सोक्राइन पोर्शन का, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड पार्ट है पेनक्रियास का, उसका मोस्ट कॉमन डिसीज होता है पेनक्रिएटाइटिस, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलता है और काफ़ी फास्ट से ग्रो हो रहा है. पहले इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं मिलते थे, लेकिन आजकल ज़्यादा मिलने लगे हैं. सेकेंड पोर्शन आता है उसका एंडोक्राइन पोर्शन, जो बेसिकली हार्मोनल एक्टिविटी करता है. तो उसका सबसे कॉमन डिसीज है डायबिटीज मेलाइटस. जैसा कि सभी जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज मेलाइटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ मल्टीपल एटियोलॉजी. दिस इज carbohydrates. This is the chronic hyperglycemia with disturbances of carbohydrate, fat and protein metabolism resulting from defect in insulin secretion, insulin action of both. तो जैसे कि अब इंडिया के बारे में जानते हैं कि इंडिया इज नाउ बिकम ए कैपिटल ऑफ डायबिटिक. इन 2025 over 150 million people have diabetes mellitus worldwide. Next. Diabetes is due to either the pancreas not producing enough insulin or the cells of the body not responding properly to the insulin produced. Basically, three types of diabetes. First
is type 1, another type 2, and next please. Next, it results from the pancreas cell. This is this was previously named as the insulin dependent diabetes mellitus. Type 2 is begins with insulin to respond to insulin properly. नेक्स्ट कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से इंसुलिन का वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं होता सेल के थ्रू. सेल इज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, दैट इज डेवलप एज इंसुलिन रेजिस्टेंस. नेक्स्ट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, इज द थर्ड मेन. सर फिर से वॉइस इंटरप्ट हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. लीलाधर सर, हेलो सर, आप सुनाई दे रहा है सर? सर हेलो सर, सुनाई नहीं दे रहा है सर. जी सर, जी सर, अभी फिर से सुनाई नहीं दे रहा था सर. There is lot of interruption. आप जो बात कर रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा. हेलो, ठीक है. नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं सर, कट हो रहा है सर, डिस्टर्ब है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. क्या हेलो 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 हेलो, अभी आ रहा है मैडम आवाज? कट हो रहा है? हाँ अभी ठीक है सर, अभी ठीक है फिलहाल. जी सर. हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है मैडम? जी सर, अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है सर. हेलो लीलाधर सर. हेलो, जी सर, जी सर, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है. यस मैडम, आवाज क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है. यस, यू कैन स्टार्ट विद गेस्टेशनल डायबिटीज. यस. हेलो ओके मैडम, तो जेस्टेशनल डायबिटीज, अच्छा सर. नेक्स्ट, अभी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है. जी सर. हाँ, नेक्स्ट करिए. नेक्स्ट तो इस प्रकार से यहाँ डिफरेंट हम देखते हैं, जैसे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 में यदि डिफ्रेंशिएशन देखें तो उसका ऑनसेट होता है. टाइप 1 सडन ऑनसेट, टाइप 2 इज ए ग्रेजुअल ऑनसेट. एज ऑफ ऑनसेट इज मोस्टली इन चिल्ड्रन, टाइप 1,
टाइप 2 इज मोस्टली एडल्ट। बॉडी साइज देखा जाए तो यहाँ पर पेशेंट टाइप 1 का पेशेंट थीन रहता है या फिर नॉर्मल रहता है, लेकिन टाइप 2 के पेशेंट मोस्टली ओबेस रहते हैं। कीटोएसिडोसिस जो कॉम्प्लिकेशंस है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमन होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ में रेयर होता है। ऑटो एंटीबॉडीज टाइप 1 डायबिटीज़ में प्रेजेंट होता है एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में एब्सेंट होता है। एंडोजीनस इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ में लो और एब्सेंट रहता है, बट इन टाइप 2 डायबिटीज़ इट इज़ इन नॉर्मल लेवल और increased. In identical twins, that is the type 1 diabetes occurs in 50% and type 2 diabetes in 90%. Prevalence है 10% and type सर हेलो हेलो हाँ हेलो सर। हाँ सर हेलो अब तक तो क्लियर था, शायद फिर से कट हो रहा है। हाँ ओके ओके अभी ठीक आ रहा है ना? अभी ठीक है सर फिलहाल। जी सर। क्या इधर वेदर थोड़ा चेंज हुआ है, इस कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है काफी। जी सर जी सर जी सर। तो फर्स्ट देखते हैं जैसे मेन पैथोलॉजी बाय the auto antibodies. It is an autoimmunity which leads to a loss of beta cells and thus insulin. इस प्रकार से यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज में मुख्य रूप से ऑटोइम्यूनिटी के कारण बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण से इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, most affected peoples are healthy and after healthy weight when onset occurs. Type 1 diabetes affect the children or adults. ये मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज जो है बच्चों को या फिर एडल्ट्स में ही मिलता है। बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट मिलता है क्योंकि जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड होता है। नेक्स्ट, type 1 diabetes is partly inherited with multiple genes including certain HLA genotypes known to influence the risk of diabetes. In genetically susceptible people, the onset of diabetes can trigger by one or more environmental factors such as viral infection or diet. Among dietary factors, gluten may lead to type 1 diabetes, but the mechanism is not fully understood. Next, please. Pathophysiology of type 2 diabetes. So basically, type 2 diabetes is characterized by इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पर मेन जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन टाइप 1 डायबिटीज दैट इज द एब्सेंट ऑफ या फिर लॉस ऑफ बीटा सेल। इन टाइप 2 डायबिटीज इज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन। द डिफेक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ बॉडी टिश्यू to insulin believed to involve the insulin receptor. In early stage of type 2, the predominant abnormality is the reduced insulin sensitivity. It is due to the lifestyle factors and genetics. Next, please. A number of lifestyle factors are known to important for the development of type 2 diabetes, like obesity, lack of physical activity, poor diet and stress. तो बहुत सारे लाइफस्टाइल के जो फैक्टर्स होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के
पैथोलॉजी में या फिर उसके मैनिफेस्टेशन में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन है ओबेसिटी, स्ट्रेस भी कहा गया है। इसके अलावा डाइट के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि शुगर वाले जो जितने भी ड्रिंक्स हैं जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा फैटी डाइट्स लाइक सेचुरेटेड फैट्स हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, ये सब जो है इसकी रिस्क को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एंड इसके अलावा वाइट राइस बहुत ज़्यादा इसका रिस्क होता है, ईटिंग लॉट्स ऑफ वाइट राइस एंड लेक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको होने के लिए, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है उसको डेवलप कराता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज। तो इसमें मेन क्या होता है, ये बेसिकली रिसेम्बल्स लाइक ए टाइप 2 डायबिटीज mellitus. 2 to 10% of all pregnancies and improve or disappear after delivery. After delivery it disappear हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो जेस्टेशनल डायबिटीज के कारण बच्चे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो इट मे बी ट्रांजिएंट, untreated gestational diabetes can damage the health of fetus. Like risk of the babies for the risk that is the macrosomia, high birth weight, congenital heart defect, CNS abnormality and skeletal muscle abnormalities. Next, अब देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो यहाँ पर होते हैं। तो एवरीवन नोज अबाउट द 3 P's, that is the polydipsia, polyphagia and polyuria. मोस्ट कॉमन साइन होता है 3P प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अलग से डायग्राम में जो सिस्टम वाइज शो किया गया है। ये सबसे क्लासिकल जो सिम्टम होता है डायबिटीज का वो 3P के रूप में आता है। साथ में होता है वेट लॉस, तो वेट लॉस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। सिम्टम्स में डेवलप रैपिडली in type 1 diabetes mellitus, while they usually develop much more slowly and may be subtle or absent in type 2 diabetes. तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो बताए हैं, वो टाइप 1 डायबिटीज़ में फास्ट डेवलप होते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में कम होता है। ये क्लासिकल सिम्टम हो सके तो प्रेजेंट ही ना हो, कभी कभी पेशेंट में क्लासिकल प्रेजेंट होते नहीं। इसके अलावा जो अदर जो एडिशनल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ब्लर विजन, हेडेक, फैटिक, slow healing of cuts, itchy skin. Prolonged high glucose can cause glucose absorption in the lens of the eye, which leads to changes in the shape resulting in vision changes. तो vision changes होता है ये ग्लूकोज के कारण ही होता है। एंड डायबिटिक डर्माडोमास। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसके डेवलप होते हैं। तो दैट इज मेजर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इसका वो ब्लड वेसल्स के डैमेज के कारण होता है। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। दिस टिपिकली डेवलप आफ्टर मेनी ईयर्स लाइक 10 to 20 years. Diabetes double the risk of cardiovascular diseases. About 75% of death in diabetes are due to the coronary artery disease. Next, another complication is the small blood vessels. तो स्मॉल ब्लड वेसल्स में कॉम्प्लिकेशंस के कारण आईज, किडनीज एंड नर्व्स ये सब डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलपमेंट होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। 3 are the most common complications of diabetes. First is diabetic retinopathy, diabetic nephropathy and diabetic neuropathy. 3 are the most common complications. Next, diabetic foot ulcers and diabetic amyotrophy. मस्कुलर वास्टिंग जिसमें मिलती है, धीरे धीरे उसकी धातुएं क्षीण होने लगती है और मसल वास्टिंग वहाँ पर डेवलप होने लगती है। एंड देन है प्रॉक्सिमल डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक फुट और डायबिटिक न्यूरोपैथी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं।
नेक्स्ट, अब क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करें और जो बेसिक होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज के लिए फास्टिंग है, इम्पेयर्ड IgT, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, रैंडम और आफ्टर पोस्ट प्राइमर। इस तरीके से तो WHO ने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ग्रेटर देन और इक्वल टू 126, ये वेनस प्लाज्मा के लिए, और होल ब्लड में ग्रेटर देन 110। फास्टिंग होना चाहिए 110 से कम, 101 10 mg से लेस देन होना चाहिए। इसके अलावा HbA1c का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है यहाँ पर। उसमें HbA1c 7 mg/TL से कम होना चाहिए, तो अंडर कंट्रोल होता है। 7 से अबव डायबिटीज कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं हम आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग में, आयुर्वेद में इसको किस रूप में डिस्क्राइब किया है, डायबिटीज को हम किस रूप में समझेंगे। तो इसके लिए आयुर्वेद में काफ़ी इसका वर्णन किया गया है प्रमेय चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत। तो प्रमेय क्या होता है, तो प्रमेय इज प्रकर्षेण मेहति, प्रकर्षेण प्रचुर वारम वारम वा मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे स प्रमेय। तो प्रमेय क्या है, इसमें बार बार मूत्र का त्याग, और कैसा मूत्र हो, तो इसके लक्षण दिए हुए प्रभुता विल मूत्रता, ऐसा मूत्र जिसमें आविल मूत्रता, आविल मूत्रता मीन्स इंक्रीज टर्बिडिटी ऑफ यूरिन, एंड प्रभुता मूत्रता दैट इज द इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ यूरिन। तो दो सिम्टम्स जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज द प्रभुता विल मूत्रता, दैट इज द प्रभुता मीन्स quantity, increased quantity, and increased turbidity, that is the prabhuta will mutrata. This being a common phenomenon generally understood as diabetes. Prameya is the largest symptom complex than diabetes. ये सिर्फ डायबिटीज नहीं है, प्रमेय सिम्टम का कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर वर्णों के आधार पर, मूत्र के वर्ण के आधार पर बहुत सारे मेटाबॉलिकल जो डिसऑर्डर होते हैं यूरिन से रिलेटेड, उन सबको इंक्लूड किया गया है। उसमें से जो मधुमेह है उसके अंतर्गत हम डायबिटीज को समझ सकते हैं, मधुमेह में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, इसके निदान देखते हैं। जैसे कि बताया गया है, आशा सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक आनु प्रशांति नवान्न पानम पूर्वकृतम च प्रमेय तो ककृचसन। ये जितने भी जो फैक्टर्स दिख रहे हैं डाइट से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, है ना, तो ये सारे फैक्टर्स जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमने पढ़ा है, वो यही सब फैक्टर्स हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं। नेक्स्ट, आहार में देखते हैं, तो जैसे कि बताया एक्सेसिव इंटेक ऑफ दही, ग्राम्योदक, गुरु, स्निग्ध, आम्ल लवण, ऐसे आहारों का सेवन अधिक करना। विहार में निद्रा, व्यायाम नहीं करना, ये सारी चीजें आहार विहार बताई गई। नेक्स्ट, टाइप्स, तो कितने टाइप्स के वर्णन किए गए हैं, तो दैट इज द 20 टाइप्स ऑफ प्रमेय इज डिस्क्राइब। फर्स्ट, कफज प्रमेय इज 10 टाइप्स, पैक्टिक प्रमेय 6 टाइप, एंड वातिक प्रमेय 4 टाइप्स। ऑन द देह प्रकृति के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के प्रमेय बताए हैं, स्थूल प्रमेय ही और पृष्ठ प्रमेय। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने इसके और भेद 2 भेद बताए हैं, सहज प्रमेय और अपथ्य निमित्त प्रमेय। नेक्स्ट, इस प्रकार से इसका डिटेल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे कि कफज प्रमेय 10 प्रकार के, वातिक 6, और विदोषिक क्लासिफिकेशन है। एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। सहज में जो मातृ एवं पितृ के बीज दोष के कारण उत्पन्न होते हैं, और अपथ्य निमित्त जो संसर्पण जन्य और धातु जन्य उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देह प्रकृति के बारे में बताया गया है,
तो देह प्रकृति के अकॉर्डिंग स्थूल प्रमेय है, कृष्ण प्रमेय है। फिर साध्य साध्यता के बेस पे 3 टाइप हो सकते हैं इसके, साध्य, जाप्य, असाध्य। नेक्स्ट उसकी संप्राप्ति देखेंगे तो यहाँ पर मेन संप्राप्ति बताई गई है, मधुमेह की संप्राप्ति का वर्णन चरक सूत्र में आता है, जहाँ पर हमारे शरीर का ओज बस्ती के माध्यम से बस्ती के पास में आता है और मूत्र के थ्रू पूरी बॉडी का जो ओज है वो मूत्र के थ्रू एक्सक्रीट होता है। चरक निदान में जो संप्राप्ति बताई गई है, मूत्र वहानाम सत्साम वक्षण बस्ती प्रभाणाम मेधा क्लेदोक्षितानि गुरुणी मुखान्य आसाद्य प्रतिरुंधते ततश्च प्रमेहान तेषाम स्थैर्य असाध्यताम व जनयति प्रकृति विकृति हो सकता। तो यहाँ पर जो क्या होता है, जो मेध है, क्लेद है ना, 10 दुष्य बताए गए हैं प्रमेय में। 10 दुष्य में तो कफः स पित्तम पौनश्च दोषा मेधो अस्त्र शुक्रांबु वसालस्का मज्जारसौज पिशितम च दुष्य प्रमेहिणाम स्थिर। तो 10 यहाँ पर दुष्य होते हैं, जिसमें से हम यदि दुष्य को देखें तो सारे दुष्य किस नेचर के होते हैं, वो द्रव स्वरूप के होते हैं। तो ये जो दुष्य हैं इसमें से मांस, क्लेद, ये सभी दुष्य हमारे बस्ती प्रदेश में आते हैं और मूत्र के द्वारा वो बाहर एक्सक्रीट होते हैं। प्रमेय में मुख्य रूप से शरीर में क्लेद भाव बढ़ जाता है और प्रमेय को क्या कहा गया है कि बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष है, बहुद्रवता की स्थिति रहती है, श्लेष्मा की यहाँ पर प्रधानता रहती है, कफ की प्रधानता रहती है और बहुद्रवता की स्थिति रहती है, क्योंकि इसके जितने भी दूष्य हम देखते हैं वो द्रव स्वरूप वाले रहते हैं, 3 दोष के अलावा। नेक्स्ट इस प्रकार से इसकी संप्राप्ति बताई गई है कि कफ तो मेध और क्लेद इस विषय बस्ती में जाते हैं और बस्ती में मूत्र के द्वारा ये एक्सक्रीट होते हैं। वातिक प्रमेय में वो जाता है मज्जालस्का, ये सब दूषित होकर के बस्ती में पहुंचते हैं और वहां से फिर ये मूत्र के द्वारा शरीर से एक्सक्रीट होते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति घटक में देखते हैं तो बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष ये बताया गया है। तो मुख्य रूप से कफ दोष की प्रधानता रहती है। दुष्य में यहाँ पर बहु अबद्ध मेद, मेद जो है इसका प्रमुख दुष्य बताया गया है और ये बहु और अबद्ध फॉर्म में रहता है, बहु अबद्ध मेद। शुक्र, शरीर क्लेद जो 10 दुष्य है, रस, ओज, मज्जा और लस्का। स्रोतस में मूत्र स्रोतस, मांस व स्रोतस, स्वतदुष्टि टाइप, विमार्गमन, अति प्रवृत्ति, अधिष्ठान, मूत्राशय, मध्यम रोगमान, साध्य साध्यता, कफज साध्य, पैत्तिक्याप्य एंड वातज असाध्य। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। पूर्व रूप में देखते हैं तो पूर्व रूप में बताया गया है दंतादिना मलाघ्यत्तम प्रारूपम पाणिपादियो दाह चिक्कणता देहे तृप्त स्वाद अस्यम च चाहते। तो दांतों के बीच में मल इकट्ठा हो जाते हैं, मलों का कलेक्शन होता है, पैरों में भाव उत्पन्न होना और शरीर में एक प्रकार से स्निग्धता रहती है। इसके अलावा आचार्य चरक ने कुछ और लक्षण बताए, जैसे कि स्वेदो अंगगंध, शरीर से बहुत ज़्यादा स्वेद का स्राव होना और शरीर से बहुत ज़्यादा स्मेल आना, शिथिलांगता, सय्या स्वप्न सुखे प्रतिष्ठा, सोने की इच्छा होती है, दिन भर सोने की इच्छा होती है, इस तरीके से होता है। और केश न खाते वित्थे, जटली भाव के शेष में, और पिपीलिका भी चरणम, उत्तर करने पर पिपीलिका का संचरण होने लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। अब रूप में देखते हैं तो क्या रहता है इसका रूप। तो मुख्य रूप से इसके लक्षण बताए गए हैं प्रभुता विल मूत्रता, सामान्य लक्षण तेषां प्रभुता विल मूत्रता, दोष दुष्य विशेष अपनी तत्व संयोग विशेषतः मूत्र वर्णादि भेदेन भेदों में ही कल्पते। तो इसका जो मुख्य मेन जो लक्षण बताया गया है, मेन साइन है प्रभुता विल मूत्रता। प्रभुता में एक्सेसिव अमाउंट क्वांटिटी एंड आविल में चेंजेस इन टर्बिडिटी। तो ये दोष दुष्य की विशेषता के कारण, संयोग की विशेषता से ये सारे लक्षण यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट, अब आचार्य सुश्रुत ने इसके लक्षण कुछ बताए हैं कि सहज प्रमेह रोगी कैसा दिखेगा। तो इसके लिए बताया कृशो रुक्षो अल्पाशी पिपासुर घृषम परिसरण शीलश्च भवति। सहज प्रमेह जो होता है वो कृष रहेगा, वृक्ष रहता है, स्थूल प्रमेह रहता है उत्तीर्ण स्थूलो बहुभाषी स्निग्ध शय्यासन स्वप्नशील। स्थूल प्रमेह को सोने की इच्छा रहती है ज्यादा और स्वप्नशील रहता है, स्निग्ध दिखता है। नेक्स्ट, 10 प्रकार के कफज प्रमेय बताए हैं। उदक में क्षुवालिका सांद्र सांद्र प्रसाद शुक्र में है, शुक्ल शीत सिकता शनय एंड लाला में। नेक्स्ट, सभी जानते हैं, इसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। ऐतिक प्रमेय क्षार काल नील में है एंड वातिक प्रमेय 4 टाइप्स ऑफ वसा मज्जा हस्ती एंड मधुमेह। तो मधुमेह जो होता है वही हमारा डायबिटीज मेलाइटिस है, विच अदर नेम इज दैट इज ओजो में है, मधुमेह एंड छौत्र में है। ओजो में इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से शरीर का ओज निकलता है मधुमेह में, इसलिए इसको ओजो में बोलते हैं। मधुमेह इसलिए बोलते हैं क्योंकि मधु के समान मीठा होता है और शहद के समान मधुरता रहती है, इसलिए इसको छौद्र में भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इसका प्रोग्नोसिस देखते हैं। तो क्या कहा गया है कि सर्व प्रमेहासु कालेन प्रतिकारिण मधुमेह आयांति तदा असाध्या भवंती। तो सारे प्रमेह कालांतर में मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं और असाध्य की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो मधुमेह असाध्य कहा गया है और उसे हमें असाध्यता को ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे उसकी चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्लीज। अब यहाँ पर थोड़ा मधुमेह के बारे में देख लेते हैं। तो मधुमेह की संप्राप्ति का विस्तृत वर्णन चरक सूत्र स्थान 17 में बताया गया है कि यहाँ पर आवृत गति वायुर ओजम आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्तते। तो ये जो निदान है गुरु स्निग्ध अम्ल लवण, इन सब के सेवन से शरीर के अंदर श्लेष्मा पित्त मेद मान इन सब की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जो वायु की गति को अवरुद्ध करते हैं। एक प्रकार से वायु के ऊपर आवरण होता है और उस आवरण के कारण हमारे शरीर का ओज मूत्र मार्ग की ओर आता है और वहाँ से वो बस्ती में स्थान संचय होकर के मूत्र के द्वारा ओज शरीर से बाहर निकलते रहता है। तो इस प्रकार से मधुमेह की संप्राप्ति बताई गई है। मधुमेह में मूत्र का वर्णन कैसा रहता है? तो कषाय मधुरम पांडु वृक्षम मेहति योनरः कफ वात कोपाद असाध्यम तम प्रतियान मधुमेहिनम। तो इसका मधुमेह में मूत्र कषाय एवं मधुर रहता है, पांडु एवं वृक्ष वर्ण का होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इसकी चिकित्सा के ऊपर। तो इसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करेंगे? तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से यहाँ पर मधुमेह को 2 भागों में बताया गया है चिकित्सा के दृष्टिकोण से। पहला है स्थूल प्रमेही और दूसरा बताया गया है कृश प्रमेही। तो स्थूल प्रमेही बलवाहिने कहा कृशस् तथैकः परिदुर्बलस्य संवृणम तत्र कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष फलाधिक्य। तो स्थूल प्रमेही में हमें शोधन कराना है और कृश प्रमेही में वहाँ पर हमें गृहण चिकित्सा करनी है। विभिन्न प्रकार की स्निग्ध योग से हमें उनका शोधन कराना है ऊर्ध्वाधर। फिर जब शोधन हो जाए तो शोधन होने के बाद में उस पेशेंट को तर्पण चिकित्सा देनी है, संतर्पण काम करना है वहाँ पर हमें। यदि हम संतर्पण चिकित्सा नहीं करके वहाँ पर सिर्फ उसका शोधन कराते रहेंगे तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि बताया गया है कि गुल्म क्षय मेहन बस्ती शूल मूत्रग्रह, ये सारी चीजें अब तर्पण के कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इस प्रकार से स्थूल प्रमेही में हमें संशोधन कराना है, कृश में ग्रहण कराना है। और सहज प्रमेही जो बताया गया है वो कृश प्रमेही के समान ही होता है। वहां पर हमें औषध सिद्ध अन्नपान इन सब का प्रयोग कराना है। अपथ्य निमित्तज में हमें पथ्य पालन करवाना है और अब तर्पण चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा और विशेष चिकित्सा में जैसे कि कफज प्रमेय है तो वहां पर हम वमन करा सकते हैं, पैथिक में विरेचन करा सकते हैं। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है वो हमारा कृष्ण प्रमेय ही के अंतर्गत आ सकता है, और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है उसको हम विरहण जो स्थूल प्रमेय है उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो आयुर्वेद में हम बेसिकली डील करते हैं तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस से। यहाँ पर बताया गया बहु अबद्ध मेद, ये मेन दोष होता है, इसी के ऊपर हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पर हमें मेदनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। क्लेद को मेन जो है क्लेद का ध्यान देना है, हमें क्लेद को अवशोषण करने वाले औषधों की चिकित्सा करनी है, क्लेद की चिकित्सा करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें अग्नि को वृद्धि कराना चाहिए। अग्नि वृद्धि से अबद्ध जो बद्धत्व ऑफ मेद, जो अबद्ध मेद है वो बद्ध फॉर्म में आएगा और फर्दर वो दुष्टि नहीं करेगा। नेक्स्ट है हाउ टू मैनेज डायबिटीज। उसके लिए हमें 3 वे पे चलना होगा। फर्स्ट, डाइटरी प्लान, रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेगुलर मेडिसिन। यदि हम 3 चीजें करते हैं तो डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल ट्रीटमेंट प्लान है। सबसे पहला काम निदान परिवर्जन, दूसरा संशोधन, तीसरी चीज करनी है हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, दिनचर्या का प्रॉपर फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है जैसे कि संहिताओं में वर्णन मिलता है। 100 योजन तक चलने को कहा गया है ना। इसके अलावा हमें योग है, योग के बहुत सारे आसन है जैसे मंडूकासन है और सूर्य नमस्कार है। इस तरीके के आहार में यव को विशेष महत्व दिया गया है। यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेय, जव के सेवन के लिए कहा गया है। इसके अलावा हम मुद्ग है, मधु है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, सिंगल एवं हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस में आते हैं काफी मेडिसिन। नेक्स्ट, यव को क्यों प्रधानता दी गई है, तो इसका कारण है कि यव जो है एक बहुत ही पुराना अन्न है, ये प्राचीन समय से इसका वर्णन मिलता है। प्रमेह के लिए ये सबसे मेन आहार जव को बताया गया है। जव को हम अलग अलग तरीकों से ले सकते हैं, जैसे कि त्रिफला में हम इसको रात भर भिंगा दें और प्रातः शहद के साथ मिक्स करके इसका सेवन कराएं। इसके अलावा यव में एक बीटा ग्लूटेन पाया जाता है जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करता है, साथ ही साथ में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। नेक्स्ट, medicines. There is a large number of medicines described in our Samhita. Like most सबसे कॉमन जो मेडिसिन है निशा अमल की, निशा अमल की का प्रयोग किया जाता है। ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, निशा एवं आमल की का प्रयोग। तो आमल की स्वरस में हृदय चूर्ण और शहद इसको मिक्स करके इसका सेवन करने से ये काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसके अलावा चंद्रप्रभा है ना, बसंत कुष्माकर। सिंगल मेडिसिन में काफी सारे मेडिसिन हैं जिसमें सबसे कॉमन है आमल की, गुड़मार, हरिद्रा, दालचीनी, त्रिफला, विजयसार, अग्निमंथ, शिलाजतु, स्वर्णमाक्षिक, तुरक, खदीर, देवदारवादी कषाय, फलत्रिकादि कषाय, मधुमेहारी चूर्ण, मामंजक घनवटी। इसके अलावा आयुष डिपार्टमेंट के आयुष 82, BGR 36, लोध्रासव, मध्रासव, जामुन, जीरक, गुड़मार, चिराता और बिल्वपत्र। तो ये काफी सारे मेडिसिन हैं जिनका प्रयोग आसानी से एवं सफलतापूर्वक किया जाता है। इसके अलावा हमें प्रमेह रोगी में और विशेष ध्यान देना है कि उसको हमें सिद्ध जल का प्रयोग कराना है। सिद्ध जल में सारोदक, विजयसार से सिद्ध, मधुदक, कुशोदक एवं सीधु का प्रयोग, साथ में गौमूत्र का प्रयोग कराना चाहिए। इसके अलावा एक विशेष चिकित्सा विधान और बताया गया है। जो व्यक्ति निर्धन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कहा गया है कूप खोदने की व्यवस्था, कूप 100 योजन तक चलना, गौमूत्र का सेवन, हल चलाना एवं तृण धान्य का प्रयोग, ये सब बताया गया।
इसके अलावा हमें प्रमेय चिकित्सा में रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ओज का यहाँ पर होता है, ओज के क्षय होने से शरीर की जो व्याधि क्षमता है, व्याधि बल है प्रतिकारक, वो भी क्षीण हो जाती है। इसलिए हमें रसायनों का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। रसायन में सबसे कॉमन जो यूज होता है शिलाजीत रसायन, इसका प्रयोग हम चंद्रप्रभावती और शिवा गुटका के रूप में करते हैं। इसके अलावा आमल की रसायन है, इन सब का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए। और मुझे खेद रहेगा कि आज थोड़ा सा नेटवर्क का इंटरप्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर वेदर थोड़ा खराब होने के कारण नेटवर्क में प्रॉब्लम काफ़ी आई। सर थोड़े क्वेश्चंस है, इफ यू परमिट विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पूछे। डॉक्टर आयशा मुल्ला ने पूछा है, सर एंजाइम सिक्रीशन लो होता है, एज एंजाइम सिक्रीशंस आर लो, सो हाउ इट इज सेफ टू यूज रस औषधि लाइक ताम्र सिंदूर यू एक्सप्लेन diabetes? Yes, many trials were conducted. Some Ayurveda practitioner use the tamra because tamra is the healing property. ताम्र में healing property होती है, इसलिए उसको ताम्र का वहाँ पर यूज किया जाता है। रस सिंदूर फॉर्म में होता है, लेकिन वहाँ पर हमें प्रॉपर पेशेंट के दोष और उसकी कंडीशन, प्रकृति का विचार करके वहाँ पर हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ताम्र के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। हालांकि वो ज़्यादा यदि टॉक्सिसिटी हुई तो नुकसान कर सकता है, लेकिन हमें वहाँ पर डोज का ख्याल रखना है, कम मात्रा में, साथ में पित्त शामक द्रव्यों के साथ में हम उसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर पेशेंट में डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों है सर, तो पहला कौन सा डिसीज को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट कंसीडर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, तो वहाँ पर डायबिटीज़ ही मेन डिसीज़ होता है। हाइपरटेंशन तो एक सिम्टम है, समझिए उसको, और हाइपरटेंशन का जो मेन काज है हमें उसे फाइंड आउट करना होगा। सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने डिफिकल्टी के बावजूद, नेटवर्क प्रॉब्लम का, मौसम खराब का, आपने अपना टाइम स्पेयर किया। ओके, थैंक यू सर। नाउ आई कॉल अपॉन डॉक्टर प्रतीक्षा, फाइनल ईयर BMS स्टूडेंट, to give vote of thanks to Dr. Leeladhar Sahu sir. Good afternoon to all. It's my pleasure to deliver vote of thanks to all who made the session successful. Now, I would like to thank our chief guest, Dr. Leeladhar Sahu sir, for sharing his knowledge and also for his valuable time for us. Thank you, sir. I thank our principal, Dr. A.S. Prashant sir, chairman, Dr. Naregal sir, dean, Dr. J.R. Joshi sir, for their support and also for opportunity. Thank you, sir. Organizing committee is heart and soul of this session. I thank them personally, and I also thank staff members of Department of Kaya Chikitsa. And lastly, I would like to thank all the participant students in making today's session successful. Thank you one and all. Thank you, Pratiksha. Thank you very much. Now, there is a small note. Tomorrow on day 8, we have with us the speaker, Dr. Vinay Yadu. He is going to talk on general introduction and principles of management of nutritional deficiency disorders. Okay, tomorrow at 2:30. You can ask even the first year, second years and third years, because nutritional deficiency disorders is definitely there for their syllabus also. You can ask the other students also can join. Thank you. Thank you, sir. Leeladhar sir. Thank you.